اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ فرزانہ صفدر کی زبانی، اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے برادر ملک کویت کے امیر کے نام تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر کی صدارت میں اسلامی دنیا کے وزرائے ثقافت کی 12ویں کانفرنس دوحہ میں شروع ہو گئی ہے، اور شورا کونسل کے ڈپٹی اسپیکر نے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان ڈائیلاگ کے شعبے میں قطر کے عالمی کردار پر زور دیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ۔ اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کے نام شیخ مبارک عبداللہ الحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد الثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کے نام شیخ مبارک عبداللہ الحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے بھی برادر ملک کویت کے امیر شیخ نواف الحمد الجابر الصباح کے نام شیخ مبارک عبداللہ الحمد الجابر الصباح کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی اور جزائر بہاماس کے نائب وزیر اعظم و وزیر سیاحت و سرمایہ کاری و ہوابازی جناب اسحاق چیسٹر کوپر کے ساتھ ریاست قطر اور جزائر بہاماس کے درمیان فضائی سروسز کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یہ سمجھوتہ ریاست قطر کو فضائی سروسز کے سمجھوتوں میں منسلک کرنے کا ایک حصہ ہے، جس کے ذریعے قومی ایئر لائن کے نیٹ ورک میں مزید توسیع کی جائے گی اور عالمی سطح پر اس کے روٹس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سمجھوتے پر دستخطوں کی تقریب کے بعد وزیر مواصلات سے جزائر بہاماس کے نائب وزیر اعظم و وزیر سیاحت و سرمایہ کاری و ہوابازی، بہاماس کے سب سے بڑے وزیر جناب جنجر موکسی اور وہاں کی وزارت ماحولیات و قدرتی وسائل کے وزیر مملکت جناب زین لائٹ بورن نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ریاست قطر اور جزائر بہاماس کامن ویلتھ کے درمیان ٹرانسپورٹ، مواصلات، شہری ہوابازی، سمندری جہاز رانی اور بندرگاہوں کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر بلدیہ اور باغبانی کی ایکسپو 2023 کی میزبانی کی قومی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکی السبیعی، قطر نیشنل بینک گروپ کے سی او جناب عبداللہ مبارک الخلیفہ کی موجودگی میں باغبانی کی ایکسپو 2023 دوحہ کی میزبانی کی قومی کمیٹی اور قطر نیشنل بینک گروپ کے درمیان پارٹنرشپ کے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کی روح سے قطر نیشنل بینک اس عالمی نمائش کا اسٹریٹجک بینکنگ پارٹنر ہوگا اور کیو این بی گروپ باغبانی کی ایکسپو 2023 دوحہ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس نمائش کا سلوگن ہے سبز صحرا بہترین ماحول ہے۔ اس سے پائیداری کے فروغ اور متعلقہ عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ عالم اسلامی کے بینکوں کے وزرائے ثقافت کی 12ویں کانفرنس کا دوحہ میں آغاز ہو گیا ہے۔ یہ کانفرنس دنیا اسلام کے ملکوں کی تنظیم برائے تربیت، سائنس اور ثقافت ایسیسکو کی طرف سے منعقد کی گئی ہے اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے دنیا اسلام میں کلچر کے عمل کی تجدید۔ ایسیسکو کے ممبر ملکوں کے متعدد وزرائے ثقافت اور وفود اور ثقافت کے شعبوں سے متعلقہ مختلف علاقائی اور بین الاقوامی تنظیمیں اس کانفرنس میں شریک ہیں۔ کانفرنس میں اس کے اگلے سیشن کے لیے جو 2025 تک ہوگا، کانفرنس کے دفتر کی تشکیل کی منظوری دی گئی ہے۔ قطر نے تیونس سے صدارت وصول کی ہے، جو کونسل کے نمائندے کے طور پر کام کرے گا اور سینیگال نائب صدر ہوگا۔ وزیر ثقافت اور کانفرنس کے چیئرمین شیخ عبد الرحمن بن حمد الثانی نے پہلے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست قطر ترقی کے فروغ اور انسانوں کی تعمیر میں ثقافت کو بہت اہمیت دیتی ہے۔
उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से 2 साल पहले दोहा इस्लामी सकाफत का कैपिटल था और दोहा ने, जो कि डायलॉग और सकाफतों के मिलाप की सरजमीन है, अपने सकाफती वर्से की बेहतरीन नुमाइंदगी की थी। एसिस्को के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सालिम बिन मोहम्मद अल मालिक ने इस बड़े सकाफती इवेंट की मेजबानी पर कतर के अमीर, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कतर ने अपनी बेहतरीन महारतों का मुजाहरा किया है। उसने वर्ल्ड कप फीफा कतर 2022 की मेजबानी के चैलेंज कबूल किए और कामयाबी हासिल की और इस वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के दौरान सकाफत का भरपूर जगह दी। आलम इस्लामी के मुल्कों के वज़राए सकाफत की 12वीं कॉन्फ्रेंस ने शहर लोसेल को 2030 के लिए आलम इस्लामी का कैपिटल बनाने की मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी दोहा को इस्लामी दुनिया का कैपिटल बनाए जाने की मुद्दत के दौरान वज़ारत सकाफत की ज़बरदस्त सरगर्मियों और एक मिसाली नमूना पेश करने में उसकी कामयाबी का एक नतीजा है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुतादिद दूसरे इवेंट्स भी रखे गए हैं, जिनमें एक सेमिनार का इनेकाद भी शामिल है जिसका मौजू है नौए इंसानी पर इस्लामी तहजीब के असरात। शूरा काउंसिल की डिप्टी स्पीकर डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलैती ने पुरजोर अंदाज में कहा है कि कतर डायलॉग के मैदान और मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के दरमियान रवाबित कायम करने में दुनिया की सबसे ज्यादा बाअसर मुल्कों में से एक है। इसी बिना पर वो अपनी सोसाइटी में मुख्तलिफ शहरियतों के मुकीम बाशिंदों के दरमियान कुर्बत और यगानियत पैदा करने में कामयाब हो गया है और इसीलिए यहाँ मज़ाहिब के दरमियान डायलॉग और तहजीबों के इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंसों के इनेकाद को अवामी पजीराई हासिल है। शूरा काउंसिल की डिप्टी स्पीकर तंजीम इस्लामी ताउन के मेंबर मुल्कों की काउंसिलों के सरबराह इजलास में वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए तकरीर कर रही थीं। इस इजलास का मौजू था कुरान पाक पर बार बार की जाने वाली जारियतों की रोकथाम के वसाइल की तलाश और स्टडी। कतर के हिलाल अहमर सोसाइटी ने सूडान की 2 रियासतों अल जजीरा और दरियाए नील को 80 टन इमदाद देने का ऐलान किया है। हिलाल अहमर ने बताया है कि उसने सूडान में कतर के सफीर जनाब मोहम्मद इब्राहिम अल सादा और वफाकी इंसानी मदद की कमिश्नर डॉक्टर सलाह मुबारक यूसुफ की मौजूदगी में इन दोनों रियासतों के लिए काफिला रवाना कर दिया है। उसने बताया कि इस इमदाद में फूड बास्केट्स रवाना की गई हैं जो दरियाई नील रियासत में जंग और सैलाबों के मुतासरीन और रियासत अल जजीरा में जंग से मुतासर होने वालों के लिए भेजी गई हैं। सूडान में कतर के सफीर जनाब मोहम्मद इब्राहिम असादा ने इस मौके पर कहा है कि ये इमदाद हिलाल अहमर के जरिए कतर की जानिब से अपने सूडानी भाइयों की मदद का एक हिस्सा है और इसका मकसद सूडान में जारी तनाज़े से मुतासिर होने वालों और बेघर हो जाने वालों की मदद करना है। उन्होंने बताया कि अब अगले मरहले में शहर पोर्ट सूडान में भी इमदाद पहुंचाई और तकसीम की जाएगी। कतर चैरिटी ने लीबिया के मशरकी इलाके में सैलाबों और तूफानों से मुतासरा हो जाने वालों के लिए फौरी इमदाद की फराहमी शुरू कर दी है और इसके लिए चलाई जाने वाली मुहिम का उन्वान रखा गया है लीबिया को बचाओ, ताकि इन सैलाब ज़दगान को फौरी तौर पर ग़िज़ा, रिहाइश और सेहत की सहूलतें फराहम की जा सके। वाज़ेह रहे कि लीबिया का मशरकी इलाका और बतौर खास दरना का इलाका सैलाबों और समंदरी तूफान से बहुत बुरी तरह मुतासिर हो गया है और कतर चैरिटी अपनी इंसानी जिम्मेदारी अदा करते हुए लीबिया को बचाओ मुहिम के जरिए अपने लीबियाई भाइयों के साथ हम आहंगी का मुजाहरा करते हुए इन मुतासरीन की मदद कर रही है। यूक्रेन की जंग के दौरान यूक्रेनी सदर ने बताया है कि उनके मुल्क ने अमरीकी टैंकों, इब्राम्स की पहली खेप और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने वाले ऐसे गोले वसूल कर लिए हैं जिनमें अफजूदा यूरेनियम इस्तेमाल किया गया है और ये यूक्रेन के जवाबी हमले की मदद करने के लिए कीव को मगरिब की जानिब से दी जाने वाली ताज़ा तरीन मदद है। उधर रूसी वजीर दाखिला व्लादिमीर कोलोकोर्सीफ ने कहा है कि मगरिब यूक्रेन की सूरत हाल से फायदा उठाना चाहता है ताकि रूस को कोकास के जुनूबी इलाके से निकाल दे। और अब खेलों की खबरें।
खेलों की खबरों में पहले चीन के शहर हांगशो चलते हैं, जहां 19वीं एशियन गेम्स हो रही हैं। हांगशो की एशियन गेम्स के दौरान कतर ओलंपिक कमेटी ने इन मुकाबलों में शरीक तमाम ओलंपिक कमेटियों के तमाम वफूद के लिए एक इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया। इस तकरीब का मकसद कतर ओलंपिक कमेटी के सेक्रेटरी जनरल जनाब जासिम बिन राशिद अल बुएनन ने बताया कि इसका पहला और आखिरी मकसद यही था कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ दोस्ती के पुल कायम किए जाएं। कतर प्लेयर्स एसोसिएशन की जनरल असेंबली ने अपने मामूल के इजलास में जनाब अब्दुर्रहमान अल कुआरी को अगले 4 सालों के लिए तारीफी तौर पर कतर प्लेयर्स एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन चुन लिया है। इसी तरह जनरल असेंबली ने एसोसिएशन के नायब सदर जनाब इब्राहिम अल गानम को तारीफी तौर पर ही दोबारा डिप्टी चेयरमैन मुंतखब करते हुए उन पर अपने एतमाद का इजहार किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि तमाम मेंबरान को भी दोबारा एसोसिएशन के मेंबरान मुंतखब कर लिया गया है और कतर के एक साबिक खिलाड़ी मशाल अब्दुल्ला को एसोसिएशन का नया मेंबर चुन लिया गया है। कतरी फुटबॉल लीग एक्सपो लीग का चौथा मरहला कई सरप्राइज लेकर आया है, जिनमें सबसे ज्यादा काबिल जिक्र सरप्राइज ये है कि दफाई चैंपियन क्लब अल दुहेल को इस टूर्नामेंट में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। उसे अलगराफा क्लब ने इस हजीमत से 2-4 कर दिया है। दफाई चैंपियन की शिकस्त और वो भी अलगराफा के हाथों, जो टूर्नामेंट में मुसलसल हारने का रिकॉर्ड बनाती आ रही थी, और अल रेयान क्लब ने अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जारी रखी है और वो मजमूई दर्जाबंदी में सरफहरिस्त है। असद क्लब कतर क्लब को 3-1 से हराने के बाद अपना तवाज़ुन बहाल करने में कामयाब हो गया है और वो गोल्स की तादाद के लिहाज से अलगराफा से ऊपर है। अल वक्रा ने अल जनूब स्टेडियम में खेले गए मैच में अलगराफा को 3-0 से शिकस्त देकर उसे मुसलसल चौथी शिकस्त से 2-4 कर दिया है। सलाल क्लब ने अल अहली क्लब को शिकस्त देते हुए इस सीजन की पहली फतह हासिल की है। ये अल अहली की भी मुसलसल चौथी शिकस्त है और अब अलगराफा क्लब के साथ दर्जाबंदी में वो सबसे पीछे है। और कतर फुटबॉल एक्सपो लीग के चौथे मरहले के आखिरी मैच में अल शुमाल और मैदर दोनों बराबर रहे हैं और वो हारने से बच गए हैं। अब यूरोपीय बड़े लीग मैचेस की बात हो जाए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लंदन के शुमाल में डर्बी के मकाम पर आर्सेनल और टोटनहैम के दरमियान होने वाले मैच में दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ 2-2 गोल किए हैं, जबकि लिवरपूल ने वेस्टर्न हैम यूनाइटेड को 1 गोल के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी है और न्यूकैसल ने तो चीफ फील्ड यूनाइटेड को 0 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल की है। आज का नशर खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमो अमीर ने ब्रादर मुल्क कुवैत के अमीर के नाम ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। कतर की सदारत में इस्लामी दुनिया के वज़ारत सकाफत की 12वीं कॉन्फ्रेंस दोहा में शुरू हो गई है और शूरा काउंसिल के डिप्टी स्पीकर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के दरमियान डायलॉग के शोबे में कतर के आलमी किरदार पर जोर दिया है। रेडियो कतर से आज का पहला नशर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर सफर रहमान, ऑपरेटर जाबिर अहमद, इंतखाब आलम और फरजाना सफ्तर को यहीं पर इजाजत दीजिए।